नाउ हम हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी, how can we define diversity. Diversity means the variety of a living organism lives all around us on the earth. As you seen that there are different type of plants, animals and insects and other so many different type of animals found on the earth. So this is known as the diversity, that is variety of the living thing. And second thing is the biodiversity. What is biodiversity? When biodiversity we are talking about biodiversity, biodiversity includes only the living thing around us. In diversity, everything around us can be added in this, different type of climate, different type of geographical areas and different type of forest and other things. But in biodiversity, as the biodiversity word itself, bio means the thing which are living, like the plant and animal are the living organisms. And this, when we talk about the plant and animal living in a particular area, like that we talk about a desert. In desert area only the animal and the plant lives which have the high capacity to absorb water and which can store water, and they have the different type of animals live in the desert are different, the animals live in the cold area are different. So these are the biodiversity of an area where a particular type, on a particular area different type of animals and plants are found, that is known as biodiversity. Second thing we are going to study is the need for classification. Why do we need to classify these animals and plant, and what are the processes which can be used to classify this animal and plants? First, we need to classify the animals and the plants and other organisms in different categories, because when you are going to study, and when we in science or in other thing, when we are going to study about something, we have to know that this category is involved in this. Thus we know millions of animals are there and plants are there. You can't study all of them singly. You have to classify them into, you have to separate them into, you have to put them into some category, so that you can easily find that this category involves this type of plant and they have that specific feature in them, and other category have other animals, but other category consists of other things. But if you combinedly study all these things, that it can't be possible to study all the animals, all a single animal you can't study. So to overcome this situation, we need to classify the animals according to their features and their structures. First is the Aristotle. Aristotle is the first person who classified the animals, who give a classification for this animals. But what does Aristotle do? He classified the organism on the basis of its environment or a habit. The animal who live in the water are the aquatic animals, or a plant or animal live on the land are the terrestrial animal or plant. But the main thing is this, the drawback of this Aristotle's classification is that when we talk about the water animals, there are so many animals like whales, shark, seahorse. These all animals live in the water, but their features, their characteristics are very different to each other. So we can't put them in a one category. So this is the drawback, and it cannot be included into a classification. Other than that, for a classification we need some basic structure, basic things, basic points, so that we can classify the things according to that basis. First, there are the main 4 points according which the classification has been done. First classification has been done on the presence. First thing is on the presence and the absence of the nucleus in the cell. In our previous videos, we have read about that the cell has a structure and it consists of nucleus in it. In this, on the basis of that nucleus, the organisms are divided on the present according to the prokaryotes and the eukaryotes. Prokaryotes are those organisms which do not consist the nucleus. They do not have those organisms which have cell without a well defined nucleus in it. They have nucleus, but it is not well defined, so they are put in the prokaryotes which do not have a well defined nucleus. Eukaryotes have the well defined nucleus with the cell wall
and other things. So we on the presence and the absence of the cell, they have divided into two categories, prokaryotes and the eukaryotes. After that, second is a number of cells. On the basis of number cell, that we can divide organism into two categories, unicellular and multicellular. Unicellular means the organism which is only developed, which is made up of only one single cell, like amoeba, which is a unicellular organism which only made by a one single cell. Second is multicellular. Multicellular, what does multicellular means? The organism which consists of different type of cells for performing different functions, that are included into multicellular. After that, next is the mode of nutrition. Mode of nutrition means the nutrition, how organism take their nutrition, how they make their food, how they get energy by this food system. So on the basis of mode of nutrition, there are two categories, autotrophs and heterotrophs. As you all commonly knows this word from your previous classes, from class 6 you are going to you have studied all about the autotrophs and heterotrophs. Autotrophs means the organism which make their food by themselves. They are known as autotrophs, like green plants. And heterotroph includes those organisms which depend on others, like on plants or animals or other things, so that they can take their food by them. These are known as heterotrophs. After that, next is level of organization of the body. How the body is made of an organism, different group of cells or groups of tissue or the segments, and how the body consists of the thing. As we all know that some organism is only made up of a group of cells, some organism is made up of tissues only, and some organism is made up of an organ system, and some organism which contain all three categories in them. That is the level of organization on which a body has been, a person's body, a person or an organism's body has been divided. Okay, तो हम इस आफ्टर दैट वी हैव अ हेरेसी ऑफ अ क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया. तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का सबसे मतलब क्या होता है? पहली चीज़ कि किसी भी डाइवर्सिटी मतलब कितनी वेरिएशन है, कितने तरीके की अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है. जैसे कि हम कपड़ों की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कपड़ों का एग्जांपल ले लेते हैं. आपने देखा होगा कि कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं. ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए, इसलिए कपड़ों को हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं. उसी तरीके से डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है, उनमें से कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे अदर बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये क्या है, सब एक दूसरे से बहुत अलग तरीके की है. तो ये एक डाइवर्सिटी, एक वेरिएशन, कुछ अपना अलगपन दिखाते हैं. तो वो सारा हमारे क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है. नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में हमें ये बोलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. यानी कि एक लैंड मान लिया आपने, एक सिटी मान लो, सपोज अगर हम ले लेते हैं कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कोटा का, कि कोटा में जो है कोई पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट है. तो ये उसकी क्या कहलाती है? कोटा की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, कि वहाँ पे कितने टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है. इसके बाद हमारा सेकंड आता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कि हमें पता है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, पर इनको क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत है कि इनको अलग अलग कैटेगरी में डालो? इनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत इसलिए है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो हम सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते. अगर आप एक एक प्लांट को और एनिमल को पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिलियंस और बिलियंस में एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं अर्थ में. इसके लिए इन्होंने क्या किया गया कि क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का, कि ये जो प्लांट है जिनके कैरेक्टर्स सेम से, जिनके फीचर्स सेम है, उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं. ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम जैसे इंसेक्ट्स की बात करें,
कीड़े मकोड़े की बात करें तो सारे कीड़ों मकोड़ों में बहुत सारे फीचर्स सेम होते हैं, तो उनको हमें अलग कैटेगरी में डालें। एनिमल्स जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, ह्यूमंस अलग तरीके के होते हैं, तो इन सबको जिनमें सेम कुछ कैरेक्टर एक जैसे हैं उनको अलग कैटेगरी में डालें, ताकि किसी भी पर्सन के लिए उनको पढ़ना, उनको समझना ईजी हो जाए, कि उनको अगर किसी पर्टिकुलर के बारे में पढ़ना है तो वो अपने एक कैटेगरी उठाएंगे कि हमें इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो वो कैटेगरी उठा के वो उसमें इंक्लूडेड जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो फीचर्स कॉमन फीचर शो करते हैं, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टॉटल ने दिया था, बट एरिस्टॉटल ने क्या किया गया था, उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था। वो एनिमल जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक कहलाते हैं, जो ज़मीन में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि एनिमल में, अब हमें पता है पानी में बहुत सारे एनिमल रहते हैं, फिश रहती है, शार्क रहती है, वेल रहती है, सी हॉर्स रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन सबके कैरेक्टर सेम नहीं है। वो जो वेल्स होती हैं उनमें अलग कैरेक्टर्स होते हैं, शार्क में थोड़े अलग कैरेक्टर होते हैं, नॉर्मल फिश में अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये सारे क्या है सेम कैरेक्टर शो नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो एक जैसे कैरेक्टर शो नहीं करते, उसी तरीके से सारे एनिमल जो लैंड में रहते हैं वो एक जैसे कैरेक्टर शो नहीं करते। तो ये एरिस्टॉटल की जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसका ड्रॉबैक था। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को मेन 4 पॉइंट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो पूरी तरीके से बना हुआ है, तो वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक। और अगर उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अकॉर्डिंग किया गया। यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक सेल से बने, मल्टीसेलुलर जिनमें बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, हेटेरोट्रॉप्स जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स और मच मोर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है या टिश्यूज से बना है या ऑर्गन से बना है, उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है। आफ्टर दैट हेरियसी ऑफ क्लासिफिकेशन में किया गया था, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट वेटकर एंड कार्ल वॉस जो थे, ये तीनों जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया। इनकी क्लासिफिकेशन है, इन्होंने क्या किया कि एक बड़े बड़ी कैटेगरीज बनाई गई, बड़ी बड़ी कैटेगरी बनाई कि इस ब्रॉड कैटेगरी यानी कि बड़ा कैटेगरी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो सेम फीचर वाली चीज़ें थी, सेम फीचर वाले जो एनिमल्स थे उनको उसने पुट कर दिया। उनको क्या नाम दिया उन्होंने, किंगडम नाम दिया। वो जो कैटेगरी इन्होंने बनाई ब्रॉड कैटेगरी यानी कि बड़ी कैटेगरी इन्होंने बनाई, उस बड़ी कैटेगरी को इन्होंने किसका नाम दिया, किंगडम का नाम दिया। जैसे कि हमारे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे कि एक राजा जो उसके मतलब पूरे क्या है सारी उसने अपने अंदर टाउन्स कर रखे हैं, विलेजेस कर रखे हैं, उनका कौन है, एक में राजा है, यानी कि उसने एक किंगडम है, अपना एक किंगडम जो उसने पूरे एरिया में फैला रखा है। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि वो एनिमल जिनमें फीचर्स बिल्कुल बहुत सारे फीचर्स कॉमन है वो सारे उन्होंने किस में डाल दिए, किंगडम में डाल दिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं में से जो वेचर्स थे, वेचर्स ने क्या किया था कि 5 किंगडम में डिवाइड किया। ठीक है। 5 किंगडम उन्होंने क्या क्या बनाए कि जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स जो भी यहाँ पे हमारे हट में प्रेजेंट है उनको हम 5 बड़े बड़े किंगडम में डिवाइड कर देते कि ये 5 बड़े बड़ी हमारी किंगडम्स हैं। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये 5 ग्रुप उन्होंने बनाए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है। ये 5 बड़े बड़े ग्रुप हो गए। अब इन 5 बड़े बड़े ग्रुप को क्या किया गया, इन बड़े किंगडम के नीचे और छोटे ग्रुप्स बनाए गए। जैसे कि हमारा क्या होता है, हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा स्कूल है। ठीक है। स्कूल में हमारे हेड होते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है। प्रिंसिपल हमारे हेड हो गए, वो उन्होंने क्या किया था, स्कूल हमारा किंगडम हो गया। ठीक है। अब प्रिंसिपल के बाद क्या आते हैं, उसके नीचे आती है हमारी टीचर्स आते हैं। ठीक है। मेन हेड जैसे हो गए वाइस प्रिंसिपल जो हेड हो गए, ठीक है, वो उनका एक ग्रुप बन गया।
उन टीचर्स के नीचे कौन से आते हैं, जैसे कि क्लास टीचर्स हो गए या अदर सब्जेक्ट क्लास टीचर्स आ गए, ठीक है। उन क्लास टीचर के नीचे के कौन आ जाते हैं, उनकी अगर हम नेक्स्ट ग्रुपिंग करें तो क्या आते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं। सब्जेक्ट टीचर की ग्रुपिंग की बात करते हैं तो क्या आता है, स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप डिवाइड कर दिए गए। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि जो मेन हमारा हाई किंगडम जो था वो हम मान लेते हैं हमारा स्कूल है, ठीक है। उसके नीचे डिवाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, जैसे वाइस प्रिंसिपल का ग्रुप बनाया, फिर क्लास टीचर का ग्रुप बनाया, फिर सब्जेक्ट टीचर का ग्रुप बनाया, फिर स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, किंगडम के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप इन्होंने बनाया वो था फाइलम या डिवीज़न। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो फाइलम आता है, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो डिवीज़न आता है, ठीक है। इस फाइलम और किंगडम के बाद सेकेंड हमारा फाइलम और डिवीज़न आ गया। इस फाइलम डिवीज़न के बाद हमारी नेक्स्ट आती है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लास्ट कैटेगरी होती है जिसमें कि वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे से सेम हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं सबसे पहला हमारा जो मोनेरा, उसके बारे में पढ़ते हैं कि मोनेरा जो होता है वो क्या होते हैं और उसमें हमने कौन कौन से हमने एनिमल्स या और मोनेरा जो होता है इनका कैरेक्टर क्या होता है, इनके अंदर पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसकी जो बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। थर्ड, इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, दोनों टाइप का, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और ये दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको BGA भी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये हमारे मोनेरा ग्रुप में आते हैं जिनके ये न्यूक्लियस पूरा डिफाइन नहीं बना हुआ, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, और ये इनका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया एंड BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या होता है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। जैसे कि हमने यूकैरियोट पढ़ा था हमने पहले कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनमें एक अच्छा खासा मतलब प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक सिलिका एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है कि इनकी मूवमेंट करने के लिए, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को जो प्रोटेस्टा में आते हैं उनको जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उनके लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, स्पेशल चीज़ पाई जाती है जो कि हेयर लाइक, हेयर्स नहीं होते, ये बाल नहीं है, लेकिन हेयर जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिलिया और फ्लैजिला बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स एंड प्रोटेस्टा का एग्जाम्पल है एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। जैसे कि प्रोटोजोन्स हमारे होते हैं, प्लाज्मोडियम वगैरह जो होते हैं ये हमारे प्रोटोजोन्स में आते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फंजाई। फंजाई में क्या होता है कि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स ये दूसरों पे डिपेंड करती है अपने फूड के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। दूसरा ये यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मैंने आपको बताया इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तो पढ़ लिया था, अब मैं स्पेरोफाइटिक के बारे में बताती हूँ। स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन जो मोड होता है उसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म डेड और डिके मटेरियल यानी कि सड़ी गली चीज़ों पे जो मर चुकी हैं उन चीज़ों पे या सड़ी गली चीज़ों पे जब फीड करती है यानी कि उनको खाती है तो वो जो टाइप का न्यूट्रिशन जो वो लेती है वो स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, समझ में आया? तो ये स्पेरोफाइटिक होते हैं। उसके अलावा इनमें लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन का मतलब क्या होता है कि जो फंजाई होता है वो क्या करता है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलके कई सारे प्लांट्स में दोनों साथ में पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों फंजाई और एल्गी दोनों मिक्स करके
साथ में रहते हैं तो उसको हम लाइकेन्स बोलते हैं, और जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये क्या करते हैं कि जैसे फंजा और एल्गी दोनों साथ में रह रहे हैं, इन्होंने लाइकेन बना लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि एल्गी का काम होता है वो खाना बनाती, मतलब खाना लेती हैं, फूड प्रोड्यूस करती हैं, और उस फूड को वो किसके साथ शेयर करती है, फंजाई के साथ शेयर करती है। वहीं फंजाई का काम क्या होता है कि वो वाटर लेती है और उस वाटर को एल्गी के साथ शेयर करती है। तो इस तरीके से ये दोनों शेयरिंग करने का काम करते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होता है। तो जब जिस रिलेशनशिप में दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारी होती है प्लांटी। प्लांटी का मतलब क्या होता है, जैसे नाम बताते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे इस किंगडम में आ जाते हैं। जितने भी टाइप के, चाहे वो छोटे हैं वो बड़े हो, किसी भी टाइप के प्लांट्स हैं, एक्वेटिक है कैसे भी हैं, वो हमारे प्लांटी में आ जाते हैं। प्लांटी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो उसी तरीके से ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और इनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। इनके सेल जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। ये जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हमें पता है कि ओनली प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि वो क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लास्ट हमारा है एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, पर इनके अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती। यानी कि ये जो एनिमेलिया, यानी कि जो एनिमेलिया वाले जितने भी एनिमल्स हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल्स नहीं होती। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपने खाने के लिए हमेशा दूसरों पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो ये हमारा हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, क्या क्या कौन कौन से 5 ग्रुप थे। अब इन ग्रुप्स के बारे में हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है प्लांटी, हमने फंजाई तक पढ़ लिया डिटेल में। प्लांटी और एनिमेलियन किंगडम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आपके जो काम है, आपका काम क्या है कि आप अपने इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करें, जितना पढ़ाया है उतना रीड करें, और ये जो नोट्स हैं जो आपको बोर्ड पे लिखाए गए हैं ये प्लीज़ अपनी नोटबुक में कर लें, क्योंकि आपको सेपरेट नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी मैं। जो भी है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिए गए हैं, तो आपको ये सारे नोट्स आपकी कॉपी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखने हैं, प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, ताकि आपके जो कॉपी चेकिंग करने का वक्त आएगा तब पूरा नोट्स जो है मैं वो पूरा चेक करूँगी। Other than you can't say that ma'am you doesn't provide us with the notes. All notes are already written on your board. So please carefully see the board and please write these notes in your notebook in a proper manner, so you can understand that what thing is involved in what, and you can explain them also. Please read your chapter from your NCERT book also. Thank you.